یہ میں نے تقریر لکھی نہیں ہوئی، یہ صرف نوٹس ہیں جو اوپر نہیں پائے. پاکستان میں 30% جماعتوں نے ہمیشہ نظریاتی اور اصولی سیاست کی ہے، اور اس سیاست کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی اور مخالفت سے ہی بلکہ تمام حریت پسند اور جمہوریت دشمن سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کی دشمنی بھی بولی، اور ہر طرف سے ترقی پسند جماعتوں پر ایک اٹیک جاری رہا. ان کو نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت سہنا پڑی بلکہ ہر طرف سے میڈیا اور امریکہ ہر طرف سے انہوں نے ایک جو ہے نا مخالفت کو برداشت کیا اور اپنی سیاست اصولی سیاست پر قائم کیا. جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں ترقی پسند سیاست کو تو اس میں ہمیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، اور ہمارے قائد جناب منٹو صاحب ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ تمام ترقی پسند سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے متحدہ جدوجہد کی جائے. اس میں 77 کے مارشل لا کے بعد جو وہ کلا کی ایک تحریک بنی، اس میں منٹو صاحب نے اس کو قیادت منٹو صاحب نے کی. اس کے بعد ترقی پسند سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، مختلف اتحاد بنے، مختلف موقعوں پر مختلف پارٹیاں شامل ہوئی، لیکن وہ ایک چلتا ہے. اب 2012 سے جب یہ 3 بڑی پارٹیاں اپنا اتحاد کر کے عوامی ورکر پارٹی بنائی، تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عوامی ورکر پارٹی کس طرح ایک انتخابی عمل میں بھی گئی اور اس میں رزلٹ پروڈیوس کیے. یہ لمبی کہانی ہے ترقی پسند تحریک. ہمارے یہاں اس وقت بہت سے ایسے نوجوان نسل کے دوست بیٹھے ہیں جن کو شاید اس پرانی تاریخ کا جو ترقی پسند تحریک ان لوگوں کا نہ پتہ ہو جنہوں نے اپنی زندگی اس تحریک میں گزاری، اور شاید وہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں فیض صاحب نے کہا تھا کہ مختصر کر چلے جاتے ہیں. منٹو صاحب نے بڑی جامع کتاب بھی لکھی ہے اس پہ، جس میں انہوں نے اپنی جان رکھے گی میں پوری تاریخ جو ترقی پسند جدوجہد کی پاکستان میں پوری تاریخ ہے اس کو مرتب کیا ہے. اور ایک اور کتاب جس نے نقطہ نظر مختلف مضامین کا مجموعہ ہے جو اس وقت ادھر اسٹال پہ پڑی ہوئی ہے، جو خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہے. تو ان تمام باتوں کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں منٹو صاحب، آئے رحمان صاحب، امین مغل صاحب، آپ سب کو اور دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ منیب انور صاحب. میں ڈائریکٹ سی تفصیل میں جائے ہوئے اپنے نیکسٹ اسپیکر کو دعوت دینا چاہوں گا. اس کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر عوامی ورکرز پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان میں، اور بابا جان کا ہے. بابا جان جو پچھلے کئی سالوں سے جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں اصولی سیاست کی وجہ سے، اس کی خدمات اور اس کی جدوجہد کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا بشارت کی صاحب. محترم صدر عوامی ورکرز پارٹی، وائس پریزیڈنٹ عوامی ورکرز پارٹی، یو پی کی عوامی ورکرز پارٹی کی لیڈرشپ، کامریڈز اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ میرا تعلق
गिलगित बल्तिस्तान से हैं और इसी ताल्लुक़ के बिना पर मुझे आज के इस इवेंट में जो बाबा जान का इशू है उसके हवाले से चंद कलमात या करंट जो सिचुएशन है उस पर कुछ अल्फाज कहने को कहा गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, थोड़े से करंटली बाबा जान के जो इशू है जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उनका में उस हवाले से चंद और फिर बाबा जान की थोड़ी सी बैकग्राउंड है वो आपसे शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम लोगों का जिन्होंने आवामी वर्कर्स पार्टी की इस कन्वेंशन में आकर हमारी जो कोशिश है एक जिद्दोजहद है एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक खुशहाल पाकिस्तान के लिए और ऐसे पाकिस्तान के लिए जिसमें तमाम वो अफराद जो मार्जिनलाइज्ड हैं इंक्लूडिंग वो लोग जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है जो पहाड़ों में रहते हैं, उनकी इस जद्दोजहद में साथ देने के लिए आपकी कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूदगी को हम बहुत ही ज़्यादा सराहते हैं और सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो सकरदू से गिलगित बल्तिस्तान में एक इलाका है सकरदू, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले कमाल इल्हामी साहब का एक शेर आपके पेश खिदमत है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हवाले से, वहाँ के वासियों के हवाले से। पहाड़ों सिलसिले चारों तरफ दरमिया हम हैं, पहाड़ों सिलसिले चारों तरफ दरमिया हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। गो कि ये लोग पत्थर में रहते हैं लेकिन इनकी अज़मतें, इनकी हिम्मतें उन पहाड़ों और उन चोटियों से भी बुलंद है। केटू जैसा चोटी जो कि सकरदू में वाक़ा है उससे बुलंद इनकी अज़मतें हैं और इनकी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए। लेकिन अफसोस सब अफसोस कि उन्हीं में से बाबा जान जैसे एक बाहिम्मत हमारे साथी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। और इसी हवाले से जॉर्ज ऑरवेल ने अपने नॉवल 1984 में कहा कि if there is a hope of revolution it lies with the pros। और यहाँ पे प्रोज मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है, गिलगित बल्तिस्तान की वो गरीब आवाम जिन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी जो है घर की बनी हुई लाठियाँ और इस तरह के हथियारों से वहाँ की जो साम्राज्य थी उनको भगाया, उनसे आज़ादी हासिल की और कॉलोनियल जो भी स्ट्रक्चर्स थे उनका डट के मुकाबला किया और फिर पाकिस्तान के साथ इलाहा किया। लेकिन अफसोस कि आज भी इस खत्ते के अवाम उन्हीं कॉलोनियल मास्टर्स के उन तरीक़ाकारों के तहत हुकूमत उन पे की जा रही है और वो अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम है। गो कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए हमें एक पोस्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है, केटू का नाम लिया जाता है, उसको सर करने वाले नज़ीर साबिर और बहुत सारे ऐसे अफराद का नाम लिया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती, वहाँ की वादियों पहाड़ी सिलसिलों की खूबसूरतियों का जिक्र हर जगह मिलता है, लेकिन वहाँ के अवाम के मसाइल, उनकी जद्दोजहद और उनकी कोशिशों का जिक्र कहीं नहीं मिलता। कोई पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया किसी जद्दोजहद को, किसी बुनियादी इंसानी हुकूक की आवाज़ जो उठाया जाता है उसको कवरेज नहीं देते। ये मीडिया वहाँ पे एक आध फेस्टिवल्स के लिए आती है, वहाँ की खूबसूरती और वहाँ के चंद मौसमों को दिखाती है और फिर चली जाती है, लेकिन पीछे लोग जो अजाब सहते हैं, जो मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं वो कभी नहीं दिखाया जाता। एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा सामने रखा गया है आज तक गिलगित बल्तिस्तान का, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मैंने ज़िंदगी के 15 से 20 साल में इलाकों में गुजारे हैं, वहाँ बुनियादी सेहत से लोग महरूम हैं, तालीम का निज़ाम, अकाउंटेबिलिटी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप कह सकें और जिस चीज़ पे हम ये कह सकें कि वहाँ की आवाम मुतमईन है। गो कि जब लिटरेसी रेट और ऐसी दूसरी चीज़ों का जिक्र हो तो पाकिस्तान में सबसे पहले इन्हीं इलाकों का नाम आता है और लोग बड़े फख्र से पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज पेश करने के लिए सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हुकूक, बाबा जान जैसे अवाम, बाबा जान जैसे लोग, उसके साथी जब अपनी बुनियादी हुकूक के लिए सड़कों पे आते हैं, कोशिशें करते हैं, तो उन्हें एंटी टेररिस्ट कोड और इस तरह के और काले कवानीन के तहत उन पे गद्दारी, उन पे स्टेट से गद्दारी के नाम पे उन्हें जेलों के पीछे भेज दिया जाता है। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि इस वक्त बाई इलेक्शंस जारी है, होने वाले हैं, जो कि मुलतवी हो चुके हैं और इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात है। और जिस तरह बाबा जान की शोहरत में, उनकी जद्दोजहद में इजाफा होता जा रहा है, मैं उन तमाम हजरात का जो पूरे पाकिस्तान से बाबा जान की सपोर्ट के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं, खासकर अवामी वर्कर्स पार्टी के कारकुनान जो वहाँ पहुँच के उस जद्दोजहद में शरीक हो रहे हैं और कोशिशें
ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی یہ میسج دیا تھا کہ ان تمام حضرات کا یو کے سے لے کے اور آسٹریلیا اور ان تمام جگہوں سے جہاں سے پیغامات ان کو موصول ہو رہے ہیں اور کئی طریقوں سے وہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ باقی ایک بابا جان کی جدوجہد جاری ہے، وہ جیل میں ہیں اور ان کو جو ہے وہ جو سزا ان کو ملی ہے وہ بہت لمبی ہے، عمر کی سزا ہے وہ بھی دوہری ہے، تو یہ جدوجہد جاری رہے گی اور عوام جس طرح عوامی ورکرز پارٹی کے جھنڈے تلے جمع ہو کر کوشش کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کوشش رنگ لائے گی اور پاکستان کے وہ تمام افراد جو یہاں پہ رہتے ہیں اور جو ان تمام حالات کو سمجھتے ہیں وہ بابا جان کے لیے ضرور آواز اٹھائیں اور ان کی اس تحریک میں شامل ہو اور ان کا ساتھ دیں۔ اور میں آخر میں توقیر گیلانی صاحب کا ایک نظم آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ میرے یار سن مجھے یہ بتا، یہ جو پچھلے جنموں کا بوجھ ہے یہ اور کتنا اٹھائیں گے، یہ روایتیں، یہ جہالتیں، یہ شریعتیں، یہ اذیتیں، یہ ہزاروں سال کی میتیں جو ہنوت بھی تو نہیں ہوئی، یوں جی رہے ہیں سر انڈ میں یہاں سانس لینا محال ہے، یہ وبال ہے حد و بال ہے، یہ غبار عہد گزشتگاں، یہ مزار ہیں جو دھواں دھواں، یہاں کوئی شمع جلے گی کیا، یہاں کوئی فکر پلے گی کیا، یہ جو تیری میری ہے زندگی یوں ہی الٹے پاؤں چلے گی کیا، یہ جو تیری میری ہے زندگی یوں ہی الٹے پاؤں چلے گی کیا، میرے یار سن مجھے یہ بتا، یہ جو پچھلے جنموں کا بوجھ ہے اسے اور کتنا اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔ کامریڈ بشارت بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بابا جان کے لیے اس کو پریزنٹ کیا۔ میں بڑے سے ڈیٹیل میں جائے ہوئے اپنے نیکسٹ اسپیکر کو دعوت دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پلیز اپنے موبائل فون آپ سوئچ آف کر دیں، جو کہ ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پروگرام 2 حصوں میں مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے کہ بہت مختصر ہے، اس میں کچھ اسپیچز ہوں گی، اور سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کا یہاں پہ ہم میوزیکل ایونٹ اور کلاسیکل ڈانسز ہمارے کامریڈز آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ پاکستان سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں، کامریڈ عارف اظہر اور آمنہ نواز۔ میں گزارش کروں گا جناب محسن ذوالفقار صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ Comrades and friends, I bring to you greetings from North England Awami Workers' Party. And I would like to register our thanks to London comrades for organizing this meeting. This meeting is a small reflection of the growth of the Awami Workers' Party in Pakistan. Today, party's branches are formed everywhere in the country, even in remote areas of Pakistan. Party is involving women, students, workers and peasants in large numbers. In UK too, Awami Workers' Party is also taking roots. It has now presence in London, Bradford, Birmingham, Leeds, Liverpool, Oxford, Cambridge, Preston, Newcastle, Manchester and Glasgow. And I hope we will reflect the growth of AWP Pakistan in this country as well. As AWP in UK, we have 3 tasks in this country in front of us. First, to promote Awami Workers' Party among Pakistanis by uniting all the progressive and socialist individuals and organizations and making it
the biggest, strongest left group among Pakistanis. In the last few years, we have been using some front organizations to generate interest for AWP. And in the north of Britain, South Asian People's Forum, UK, has been attracting large number of progressive people from different South Asian communities. We also, in the north of England, AWP, we have been using effectively the social media. We have AWP UK website, also South Asian People's Forum UK website, which now has got over 15,000 friends. And in addition to that, we have formed NSF Revisited, Remembering Habib Jalid friend groups on the internet. The second point, to provide logistic support to AWP in Pakistan. This also includes financial support. In the past, we have made financial contribution to the party, but now, large crowd here, but now we have to concentrate in building a system in Britain and Europe to regularly provide support, financial support to our comrades in Pakistan. Thirdly, being in the UK, we have to work and unite with progressive and socialist individuals and organizations to oppose capitalism, racism, sexism, and other forms of discrimination. Some 80, 90 years ago, a revolutionary from our part of the country, Pakistan, raised a slogan which became the battle cry for all the Indians. That man was Bhaghat Singh. In the end, I would like to raise the same slogan again. Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Thank you. बहुत शुक्रिया मोहसिन जुल्फिकार साहब, आपने जो इंस्पिरेशन दी हमें, इसलिए अब मैं नेक्स्ट स्पीकर जो है हमारे एडवोकेट राशिद असलम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। राशिद असलम साहब का अवामी वर्कर्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा ताउन रहा है। हमारे इश्यूज़ को, हमारे जो मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन में और दूसरे इश्यूज़ में इसका हमारे साथ हमेशा साथ रहा है। तो राशिद असलम साहब, मुझे आज जिस मौजूद पे बोलने के लिए कहा गया है वो है पनामा पेपर्स, पनामा लीक्स। एक इंटरेस्टिंग मौजूद है, काफ़ी दिनों से मेरे बहस है। ये मौजूद तब शुरू हुआ जब एक जर्मन अखबार ने कुछ 11.5 मिलियन पेपर्स रिवील किए, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि सरमायादाराना निज़ाम में हमेशा ऐसे चोर रास्ते मौजूद होते हैं जिनमें सरमायादारों को उनके सरमाए को महफूज करने के लिए महफूज पनाहगाहों का रास्ता दिया जाता है। वो अपनी दौलत को या ऐसे ज़र को इस तरह छुपाते हैं कि वो उस महफूज पनाहगाहों में बगैर टैक्स के टैक्स एवेजन करते हैं। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस मकसद के लिए पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 45 जगह ऐसी हैं जिनको ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स का या सो कॉल्ड टैक्स हेवंस का नाम दिया गया है। उस टैक्स हेवंस में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2012 के दादोशुमार के मुताबिक सालाना $32 ट्रिलियन की टैक्स एवेजन होती है। इसमें ज़्यादा मकबूल जो टैक्स हेवंस हैं वो टर्की
तरक्की याफ्ता मुल्कों के ज़ेरे इंतज़ाम हैं या उसके अंदर मौजूद हैं। इसमें जो अभी लिस्ट आई है उसमें 143 पॉलिटिशियंस के नाम निकले, जिसमें 12 पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो इस वक्त बराह रास्त मुल्कों के सरबराह हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम है, व्लादिमीर पुतिन का नाम है। उसमें एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि चाइनीज पोलिट ब्यूरो के 8 मेंबर्स के नाम, हाउस ऑफ लॉर्ड के 6 मेंबर्स के नाम, 3 टोरीज एमपीज के नाम भी उसमें मौजूद हैं। इस पैसे को फिर आगे इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको एक स्पेशल बैंक मैनेजर असाइन किया जाता है जो आपको ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जाता है जो इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है। वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट होती है या उसकी इन्वेस्टमेंट वेपन्स इंडस्ट्री में होती है, जिसकी वजह से जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं। इसमें इस निज़ाम को आप ऑफशोर कंपनीज का नाम दे लें या कोई और नाम दे लें, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सरमायादाराना निज़ाम मौजूद है। जरूरत इस अमल की है कि इस सरमायादाराना निज़ाम के खात्मे के लिए मजदूर, किसान, वर्कर, स्टूडेंट सारे लोग मिलकर काम करें। बहुत शुक्रिया राशिद असलम साहब। हमारे जितने स्पीकर्स हैं वो काइंडली नोट कर लें कि कुछ एक्सेप्शंस के अलावा 5 मिनट्स फॉर दीज स्पीकर्स। तो राशिद असलम साहब पहले स्पीकर थे जिसने 2 मिनट्स में अपना स्पीच खत्म किया। थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो है वो कॉमरेड महविश अहमद हैं जो कि अवामी वर्कर्स पार्टी यूके के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और शी इज़ डूइंग PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सो कॉमरेड महविश। सलाम। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मौका मिला है मुख्तसर सी बात करने आप सबके साथ। वैसे तो बड़ी खुशी हुई है कि यूके के अंदर भी हमारे इतने सारे मेंबर्स हैं। पाकिस्तान में पिछले साल में कैम्ब्रिज से जब मैं गई हूँ तो इस साल ख़ास तौर पे हमारी 2nd कांग्रेसेस हो रही है। एवरी 2 years कांग्रेस रखते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस हो रही है जिधर 200, 300, 400, 500 लोग आते रहे। और लास्ट जिस कांग्रेस में मैं गई थी वो बलूचिस्तान में थी और माशाल्लाह उधर भी कोई 300 से 400 लोग तो पहुँचे हुए थे। आज जिम्मेदारी मुझे 2 चीज़ों की दी गई है। एक तो है कि मॉर्निंग सेशन की समरी दे दूँ। मॉर्निंग सेशन में हमारे मुख्तलिफ कॉमरेड इकट्ठे हुए थे और उधर बातें भी चल रही थी जो ख़ास तौर पर एक्टिव है यूके में। शुरुआत 11 बजे हुई थी हमारी मॉर्निंग की सेशन शुरू, और वहाँ पे प्रेसिडेंट हमारे पार्टी के आबिद हसन मिंटो साहब ने पार्टी के बारे में कोई नुक्ते नज़र दिए थे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं पार्टी के। अख्तर हुसैन साहब ने, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स पे बात की थी। और मुस्तफ़ा कमाल जो हमारे AWP यूके के इतनी ज़बरदस्त तरीके से इस आज प्रोग्राम को चला रहे हैं, उन्होंने भी AWP यूके के जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रही है, ख़ासतौर पर जो हाई कमीशन के आगे प्रोटेस्ट भी रखे हैं विमेन प्रोटेक्शन बिल या और मुख्तलिफ इशूज़ पे, उसके बारे में उन्होंने समरी दी थी। और आखिर में आमना फवाद खान जो आज आपके सामने अपना डांस भी पेश करेगी, उन्होंने जो पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ रही है, ख़ासतौर पर जो हमारी एक्टिविटीज़ इविक्शन, एंटी इविक्शन प्रोटेस्ट में हुए कच्ची आबादी के ऊपर, जो हमारी इन्वॉल्वमेंट गिलगित बल्तिस्तान में बाबा जान की इलेक्शन में हुई है, जो मुख्तलिफ जगहों पे हमने पार्टी को के ऑफिस खोले, उसके बारे में उन्होंने भी बात की थी। ओकारा और सो कोर्स जो ओकारा इस वक्त आप सब जो फॉलो करें पार्टी की एक्टिविटीज़ और वैसे पाकिस्तानी न्यूज़ थोड़ा बहुत डिटेल से फॉलो करते हैं, आपको पता है कि इस वक्त ओकारा में कोई several hundreds of peasants have been arrested anti-terror laws के। उसके बाद हमारी क्वेश्चन आंसर सेशन हुई थी जिसमें मुख्तलिफ जो हमारे एक्टिविस्ट कॉमरेड्स थे उनको मौका मिला था कि वो मिंटो साहब और अख्तर साहब के साथ कोई सवाल जवाब भी हो जाए और ओपन डिस्कशन भी हो जाए। उसमें ख़ास तौर पे 4 बातें उठी थी। एक तो है एक रेजोल्यूशन पेश हुई थी कि फोर्स्ड मैरिजेस के खिलाफ हमें एक स्टैंड लेना चाहिए और फोर्स्ड कन्वर्जन्स खासतौर जो हमारी माइनॉरिटी ग्रुप्स है, हिंदू क्रिश्चियन औरतों की। फिर हुई थी
ब्लेसफेमी लॉ के ऊपर कि मतलब हमारी पोजीशन ब्लेसफेमी लॉ के खिलाफ है और उसकी रिमूवल के ऊपर हम ऐसा स्टेप लेते हैं। हाँ, happy to hear। और तो कोई बोलता नहीं आजकल, इट्स वेरी डेंजरस टू से, सो इस बात पे पार्टी काफ़ी क्लियर है। नंबर 3, अफगान महाजरीन इस वक्त जो न्यूज़ फॉलो कर हमें पता सरफराज मुफ्ती से लेकर और जगहों पे अफगान महाजरीन के ऊपर बेसिकली रेसिस्ट हमारे पख्तून भाई बहनों के खिलाफ एक डिस्कोर्स शुरू हो गया। उसके ऊपर थोड़ी बहस हो रही थी लेकिन आखिर में आई थिंक एग्रीमेंट हो गई थी और एक रेजोल्यूशन भी डायरेक्टली पेश हो गया कि भाई नहीं, अफगान महाजरीन भी हमारे भाई बहन हैं और जैसे हम रेफ्यूजी पॉपुलेशन को कहते हैं हमने इंग्लैंड या यूरोप या अमेरिका में उनका ख्याल रखना है, ऐसे पाकिस्तान में भी करना चाहिए। और आखिर में नेशनलिस्ट क्वेश्चन पे बात हुई थी कि मतलब नेशनलिस्ट क्वेश्चन को हम बिल्कुल मानते हैं। इधर ऊपर लिखा भी हुआ पोस्टर पे, we will constitutionally guarantee the right of self-determination and the right of secession of all nationalities। ये हमारे मंशूर में भी है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अगर कोई secede कर भी ले इसका ये नहीं मतलब है कि अब ऑपरेशन खत्म हो गई है, मतलब क्लास क्वेश्चन remains alive there as well। अब जल्दी से मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, हमने इस कन्वेंशन से पहले ओवरसीज कॉन्फ्रेंस की एक डिक्लेरेशन भी तैयार की थी। इसको हम इस वक्त 3 हिस्सों में हम आपको प्रेजेंट करेंगे क्योंकि थोड़ी सी आपको पता है जब इंसान कोशिश करता है, हमारी पार्टी में खास तौर पे वेदर प्रेस रिलीज की बात होती है, डिक्लेरेशन की बात होती है, उसको तैयार करने तो बड़ी निगोशिएशन होती है, सब चाहते हैं अपनी बात घुसा दें, तो बात घुसा कर वो 5-6 सबों का हो गया, तो हम उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके आपको 3 हिस्सों में हम प्रेजेंट करेंगे। पहला हिस्सा जो मैं प्रेजेंट करूँगी, अगला भी हिस्सा मुझे लगता है मैं करूँगी, फिर तीसरा रिजवान करेंगे। इस पे पहला हिस्सा इट्स बेसिकली पहले भी अभी बात हुई है कि AWP UK का मकसद क्या है, उसके ऊपर ही बिल्ड करती है ये बात कि इस ओवरसीज डिक्लेरेशन में हमारी शुरुआत ये है, मैं आपको मुख्तसर से बताऊंगी क्योंकि 3 पेजेस की है। That this convention is coming on the heels of a massive expansion and solidification of the political strength of the party in Pakistan। मतलब कि हम कोई अलग करके पार्टी नहीं बना रहे, पार्टी 2012 से has gone from strength to strength। हमने marginalized peoples के साथ, चाहे वो peasants हुए, workers हुए, women हुए, हमने उनका साथ दिया है, बोकारो में दिया है, गिलगित बल्तिस्तान में दिया है, बलूचिस्तान में दिया है, सिंध में सारी जगह दिया है वहाँ, और उधर हम पाए जाते हैं taken principal stances। ये ओवरसीज कन्वेंशन का सबसे पहला मकसद तो ये है कि we congratulate and salute our comrades in Pakistan for their excellent work। और जो बात पहले भी हुई है उसको फिर दोहराते हैं हम इस ओवरसीज कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन में कि खास तौर पे there are 2 things that we're going to try to focus on within the UK। बात हुई भी थी, उसके ऊपर मैं ऐड करती हूँ। एक तो है कि लंदन और यूके का एक बड़ा पुराना हिस्ट्री है, पाकिस्तानी लेफ्ट के अंदर भी एक रोल रहा है, और हमारे जो सीनियर कॉमरेड हैं उनको तो खास तौर पे पता है कि यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी ताल्लुकात रहे हैं। मौलाना भशानी भी, उन्होंने भी आगे एक ज़माने में नेशनल अवामी पार्टी का चैप्टर खोला था 1966 में क्यूबा से होते हुए, और हमने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट मूवमेंट, पैलेस्टीनियंस के साथ, इन सब के साथ हमने ताल्लुकात पहले रखते थे। और आई होप अब आप सब इधर है, यंगर भी है, ओल्डर भी है, कि अब अगले सालों में हम इन मुख्तलिफ प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स के साथ फिर से ये ताल्लुकात बिल्ड करें और उनको हम पाकिस्तान भी बुलाएं, वो आगे हमें मिले और जो इंटरनेशनल डिस्प्ले है उसको हम रीबिल्ड करें। दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स के माइग्रेंट लेबर और इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं हमारी, मैं खुद भी, मेरी बैकग्राउंड डेनमार्क से भी है और लाहौर से भी है, ये मिक्स है। तो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के अंदर एक तो होती है जो सीनियर जनरेशन से इधर शिफ्ट होते हैं, माइग्रेंट लेबर कम्युनिटीज़, इसमें खास तौर पे गल्फ में बहुत सारे हैं और बहुत सारे इधर यूरोप और अमेरिका में भी पहुँचते हैं जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है और कोई यूनियनाइजिंग नहीं है, उसमें AWP एक रोल अदा कर सकता है। और आखिर में जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ एट लार्ज है, जिसमें एज पाकिस्तानी कम्युनिटीज़, हम जो इधर लंदन में रहते हुए पता है शायद, जैसे मुझे पता है यूरोप में once you move from Pakistan to Europe you become part of the Muslim immigrant community। इसका मतलब है जो एंटी मुस्लिम रेसिज्म है और इस्लामोफोबिया है
भी होता है। इस वजह से तो ख़ास तौर पे मतलब ये बात उठी थी कि अगर अफगान महाजरीन का जैसे इधर सलूक किया जाता है ऐसे हम सब का इधर सलूक किया जाता है। तो ये दो बातें हैं और वी विल बी शेयरिंग द ओवरसीज डिक्लेरेशन लेटर थोड़े से अमेंडमेंट्स के बाद, बट एंड we'll speak a little bit more about it later. बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम जी है, मेरे बारे में नारे लगा रहे हैं। मैं इस वक्त जो हूँ अभी आई हूँ, मैं अपने मुहतरम उस्ताद और सीनियर सहाफ़ी और हमेशा जिनका तरक्की पसंद सियासत के साथ ताल्लुक़ रहा पाकिस्तान में, आया रहमान साहब उनको दावत देने आए हैं, स्टेज पे आए। आया रहमान साहब ने बहुत ही उनका एक हमारे साथ और तरक्की पसंद एक तहरीक पाकिस्तान में उनके साथ ताल्लुक़ रहा है और जितनी भी मार्शल लॉ की मूवमेंट्स रही हैं पाकिस्तान में खड़े हैं और अब इनका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। रहमान साहब प्लीज़। अवामी मतलब पार्टी यूपी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ इस मुल्क में परदेसी हूँ और पाकिस्तान की सियासत में भी एक तरह से परदेसी हूँ। तो आपने जो मुझे इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुशी हो रही है ये बात देखकर कि अवामी वर्कर पार्टी का जो हल्का असर है वो मुल्क में तो फैल ही रहा है बल्कि मुल्क से बाहर भी उसमें बहुत रोज़ रोज़ तरक्की हो रही है और तवानाई इसमें शामिल हो रही है। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप तो इस वक्त में ऐसे हालात में लेफ्ट की क्या सियासत हो सकती है, तो एक तो ये मुझे बात कहनी है कि कोई ऐसा ज़माना भी हो सकता है जब लेफ्ट की सियासत ना हो सके। हर वक्त हर ज़माने में हर हालात में लेफ्ट की सियासत होती है। बस सिर्फ इतना देखना पड़ता है कि लेफ्ट ज़माने से एक कदम आगे है या एक कदम पीछे है। जब तक एक कदम आगे रहेंगे वो कामयाबी उनको दुकान चूमेंगे। मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक गुजारिश करना चाहता हूँ और वो ये कि सियासी जमात की असल क़ुव्वत उसकी सोच होती है और उसकी सोच जब तक लॉन्ग टर्म ना हो, मुस्तक़बिल में दूर तक न देख सकती हो, उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो हमारी आज़ादी की तहरीक में भी अगर आपको याद हो कि जो बड़े सग़ीर से बाहर तंजीमें होती थी उनका किरदार बहुत रोशन होता था, क्योंकि हमारी तहरीक तरक्की तहरीक है उसका कौमी कंटेक्स्ट भी है और एक बैन अवी कंटेक्स्ट भी है। इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। देखना ये है कि जो लोग पाकिस्तान में काम करते हैं वो रोज़मर्रा के मामलों में उलझे हुए होते हैं। उनकी सियासत में कल क्या होने वाला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इससे सियासी जमात चल नहीं सकती जब तक कि आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ना हो। पाकिस्तान में समाजी तब्दीलियाँ हो रही हैं, हमारे इलाके में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, बैन-ए-अक़वामी सतह पर बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिसका कि दादा आपसे 4 साल पहले किया नहीं जा सकता था। ईरान का क्या रोल होगा, सऊदी अरब कैसे इसराइली को जा बैठेगा, कैसे नए रिश्ते निकलेंगे, कैसे अमेरिका और ईरान का वादा हो जाएगा, कैसे पाकिस्तान जो है सिर्फ चाइना के कर्जों पर कैसे कब तक गुजारा करेगा। ये सब ऐसे सवाल हैं जिसका कई आप जवाब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास पर्सपेक्टिव है, आप थोड़ा मुल्क से दूर भी हैं, हालात को देख भी सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसे गौर करें कि जो अवामी वर्कर पार्टी की जो बैरून मुल्क शाखें हैं वो एक तरह से थिंक टैंक का काम कर सकती हैं।
वो बता सकती हैं कि आइंदा 10 साल में क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं अंदाजा नहीं है कि आगे 10 साल में क्या होने वाला है और अगर 10 साल में आवाम की क्या मुतालबात होंगे, क्या ख्वाहिशात होंगे, तो ये तो आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि आप सिर्फ वही नारे आप मकबूल होंगे जिनका बराह रास्त ताल्लुक आवाम से है। हमारा नारा इनकलाब बहुत अच्छे से है, लेकिन इनकलाब 1920 में क्या मायने रखता था, 1997 में क्या मायने रखता था, 1999 में क्या मायने रखता था और 2019 में क्या मायने रखेगा, इसका फैसला करना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाली सिर्फ ये कहने से कि इनकलाब आएगा, इनकलाब तो आएगा, हम चाहें न चाहें, लेकिन हमारी कोशिश में कितनी शामिल होगी इसका फैसला करना हमारा काम है। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मंटू साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अख्तर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उन लोगों को खासतौर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनका नाम नहीं लिया गया, जो असल ताकत वही है। बहुत शुक्रिया।